ایک پاکستانی کمانڈو کی سرگزشت، پاک فوج کا جوان، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا ایک جنگجو کی یاد بھی تھی، بھارتی ایجنسیوں کو ناکوں چنے چبانے والا گوریلا، ایک ایسا بازیگر جسے خوف چھو کر بھی نہ گزرا، ریاض عاقب کوہلر کے قلم سے نکلی ایک لازوال کہانی۔ ہم جنگل خیل کی وادی میں داخل ہو گئے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان کافی وسیع قطع زمین تھا جس میں ہر جانب سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا۔ عمارتی سلسلے میں زیادہ تر مکانات پختہ اینٹوں اور پتھروں سے تعمیر کیے گئے تھے، البتہ خال خال کچی مٹی کے بلاکوں کے بنے ہوئے مکان بھی نظر آ رہے تھے۔ راستے میں کافی خواتین ہمیں مردوں کے ساتھ ٹہلتی نظر آئیں، تمام کا لباس ناکافی اور واہیات قسم کا تھا۔ سعدیہ کے کہنے کے مطابق ان میں بڑی تعداد ازبک اور تاجک خواتین کی تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے علاقوں کے بھی کافی لوگ وہاں گھومتے نظر آ رہے تھے۔ جنگل خیل رقبے کے لحاظ سے اتنا وسیع نہیں تھا جتنا کہ وہاں آبادی کی کثرت تھی۔ سعدیہ کے کہنے پر ہم ایک ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ استقبالیہ پر ایک جوان العمر شخص براجمان تھا۔ پہلے موجود دو گاہکوں کو نمٹانے کے بعد اس نے ہماری طرف متوجہ ہو کر شستہ اردو میں پوچھا، جی آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہمیں چند دنوں کے لیے 2 کمروں کا کوارٹر چاہیے۔ وہ بولا 500 روپیہ ایڈوانس جمع کروا دیں، 100 روپیہ کوارٹر کا یومیہ کرایہ ہے۔ 5 دنوں سے زیادہ رہنے کی صورت میں 5ویں دن آپ کو مزید ایڈوانس جمع کروانا ہوگا۔ میں نے 100 کے 10 نوٹ اس کی جانب بڑھائے، یہ لو 1000 روپیہ، باقی حساب 10ویں دن کریں گے۔ اس نے رجسٹر کھولا، پلیز نام پتہ لکھوا دیں۔ میں نے کہا لکھو، عبداللہ ولد عبد الرحمان سکنا ٹھٹھا، اور یہ عبد الرحمان ولد عبداللہ سکنا جلال پور جٹا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دونوں نام درج کر لیے۔ اسے معلوم تھا کہ میں نے دونوں نام فرضی بتائے تھے، مگر یہ ایک رسمی خانہ پوری تھی جس کی وجہ سے اس نے اصرار نہیں کیا تھا۔ اس نے پیچھے کھڑی سعدیہ کی طرف اشارہ کیا، خاتون بھی آپ کے ساتھ ہے نا؟ میں معنی خیز انداز میں آنکھ دباتے ہوئے بولا، ہاں لیکن آج کے لیے۔ وہ بولا، سر اگر کوئی کمی پاؤ تو ہمیں بھی خدمت کا موقع دینا۔ خوش اخلاق چہرے کے پیچھے اس کی مکروہ صورت جھلکی۔ ہمارے پاس روس، افغانستان، پاکستان کے مختلف شہروں اور مقامی ہر عمر اور ہر نسل کا مال وافر مقدار میں دستیاب ہے، ریٹ بھی بہت مناسب ہے۔ میں نے کہا شکریہ، اگر ضرورت پڑی تو ضرور آپ کی پیشکش سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ بولا بالکل جی، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے اپنی پشت پر لٹکے چابی بکس سے رنگ میں بند چند چابیاں ہماری جانب بڑھا دیں، یہ آپ کے کوارٹر کی چابیاں ہیں۔ میں نے کہا کوارٹر تک رہنمائی کے لیے؟ اس نے قطع کلامی کی، ہاں سر یہ تو لازمی ہے، بس آپ 2 منٹ انتظار کریں بلکہ بیٹھیں۔ اصل میں کوارٹروں کو ہینڈل کرنے والے دونوں آدمی مہمانوں کو پہنچانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، جیسے ہی ان میں سے کوئی آتا ہے بلکہ وہ آ گیا ہے، منظور ان صاحبان کو 7 نمبر کوارٹر میں چھوڑاؤ۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی کو ہوٹل میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے ہانک لگائی اور منظور نامی شخص آئیں جی کہہ کر ہمیں ساتھ لیے ہوٹل سے نکل آیا۔ ہوٹل سے 100-150 گز کے فاصلے پر چھوٹے چھوٹے مکان ایک سیدھی لائن میں تعمیر کیے گئے تھے۔ منظور ہمیں ایک مکان میں لے گیا، یہ ہے جی آپ کا 7 نمبر کوارٹر۔ شکریہ کہہ کر میں نے 10 روپے کا نوٹ بطور ٹپ اسے پکڑایا اور وہ سلام کر کے چلتا بنا۔ کوارٹر کا دروازہ کھول کر ہم تینوں اندر داخل ہو گئے۔ وہ کوارٹر 2 کمروں، ایک باتھ روم اور ایک کچن پر مشتمل تھا۔ چھوٹا سا صاف ستھرا صحن میں کچن کی دیوار کے ساتھ خشک لکڑیاں ترتیب سے پڑی تھی جو لازمی کچن میں جلانے کے کام آتی ہوں گی۔ کچن کو کھول کر دیکھا تو اس میں کھانا پکانے کے برتن اور تھوڑا بہت مسالہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا ماجے یہ چابیاں رکھو، میں ذرا بازار سے کچھ پکانے کے لیے لے آؤں، ہوٹل میں کھانا کھانے سے بہتر ہے کہ ہم خود ہی کچھ پکا لیا کریں۔ امجد نے سر ہلاتے ہوئے چابیاں میرے ہاتھ سے لے لی۔ بازار تک جانے کے لیے مجھے اس ہوٹل سے گزر کر جانا پڑا جس سے ہم نے کوارٹر کرائے پر لیا تھا۔ میں ہوٹل کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ 3 ڈبل ڈور ٹویوٹا زن سے میرے پاس سے گزر گئیں اور ان کے اندر بیٹھے ہوئے بندوں کو دیکھتے ہی میں چونک پڑا۔ وہ باسمت خان کے آدمی تھے۔ وہ بڑی جلدی ہمارے پیچھے پہنچ گئے تھے۔ اتنی جلدی ان کی آمد کی توقع کم از کم میرے گمان میں بھی نہیں تھی۔ اچانک ایک خیال بجلی کسی تیزی سے میرے دماغ میں در آیا اور اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مجھے ایک بار پھر ہوٹل میں گھسنا پڑا۔ خوش قسمتی سے بکنگ والا شخص اس وقت تنہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا، السلام علیکم۔ وہ بولا وعلیکم السلام، سناؤ عبداللہ بھائی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کہیں اس گنوار لڑکی نے مزہ تو کرکرا نہیں کر دیا؟ اس نے مکروہ انداز میں اپنی آنکھ میچی۔
मैंने कहा नहीं जनाब, असल में एक और मसला है। वो चापलूसी से बोला हुक्म करो, हमारे होते हुए मसला कैसे बाकी रह सकता है। मैं उसके सामने काउंटर पर झुक गया। हमने क्वार्टर कब किराए पर लिया था? वो बोला यही कोई घंटा भर पहले। मैंने 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। हमने परसों क्वार्टर किराए पर लिया था और हमारे साथ कोई औरत भी नहीं है। उसने नोट झपट कर जेब में डाला। ओह सॉरी, वाकई आप लोग तो परसों सुबह आए थे। मैं रजिस्टर भी ठीक कर लूं, ये तो हकीकतन बहुत बड़ी गलती है। उसने मेरे सामने रजिस्टर खोला और 15 को 13 तारीख से बदल कर रजिस्टर बंद कर दिया। मैं शुक्रिया कहकर उससे हाथ मिलाकर वापसी के लिए मुड़ा। उसने मुझे आवाज दी एक्सक्यूज मी। मैंने रुक कर पूछा जी। उसने कहा सर आपने 10 दिनों का एडवांस जमा करवाया था और रजिस्टर के मुताबिक आपका अरसा परसों से शुरू है, इसलिए अब आप 8 दिन मजीद क्वार्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने उसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। मैं समझ गया यार, वजाहत की जरूरत नहीं है। वो मुतमईन हो गया, थैंक यू सर, और मैं सर हिलाते हुए होटल के बैरूनी दरवाजे की तरफ चल दिया। ये एहतियाती तदाबीर डाबेर वालों को देखते ही मेरे जहन में आई थी और मैं बगैर किसी ताखीर के उस पर अमल कर गुजरा था। मेरा अंदाजा था कि जंगल खेल में सरसरी सा चक्कर लगाते ही उन्होंने होटलों वगैरह की चेकिंग शुरू कर देनी थी और बाजार से जरूरी सामान की खरीदारी के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने उनकी एक गाड़ी होटल के दरवाजे पर खड़ी देखी। मेरी बरवक्त एहतियात काम आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में बुकिंग करने वाले आदमी की जानिब से एक हल्का सा खदशा मौजूद था जिसका तदारुक मेरे बस से बाहर था। मेरी सहूलत की खातिर अमजद ने दरवाजे की अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी। सामान किचन में रख कर मैं उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ से बातों की आवाज आ रही थी। मुझे देखते ही वो दोनों खामोश हो गए। मैंने कहा चल भाई माजे, बहुत दिनों से तेरे हाथ का बना हुआ लजीज खाना नहीं खाया, जरा अपनी काबिलियत के जौहर दिखाओ ताकि सादिया को पता चले कि तू भी कोई सलीके का काम कर सकता है। वो बोला मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि यहाँ खाना पकाने का मशवरा आपने दिया था, इसलिए ये जहमत भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। दूसरे में आपका मुंशी हूँ, बावर्ची नहीं। मैंने उससे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करना चाहा, भाई नहीं है। उसने मेरा हमला पसपा कर दिया, ये बहनों का काम होता है। मैंने कहा यार सौदा सलफ भी तो मैं इतनी दूर से जाकर ले आया हूँ, अब कुछ गैरत तुम भी कर लो। वो कहाँ हार मानने वाला था, बोला इस मामले में मैं सख्त बेगैरत हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे खाना पकाने पर राजी करने के लिए मजीद कोई दलील देता, सादिया बोली अगर इजाजत दो तो मैं पका लूं। गो ये बात वो पश्तो में बोली थी मगर अमजद को समझ आ गई थी। उसने जल्दी से लुकमा दिया। देखो ना, मेरी बहन की मौजूदगी में तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। मैंने अमजद की बात पर तवज्जो दिए बगैर रस्मी सा इनकार मुनासिब समझा और कहा मगर सादिया तुम हमारी मेहमान हो। वो उठकर किचन की तरफ बढ़ गई, बोली आपका कौन सा अपना घर है? और मैं खामोश हो गया। अमजद ने हंसते हुए कहा कुछ घरेलू सा माहौल नहीं बन गया मलिक साहब? मैंने कहा चलो इसके होने से कुछ सहूलत तो मिल गई। वो बोला वैसे इसको कब तक अपने साथ लिए फिरेंगे? मैंने कहा अब इसे कौन सा साथ लिए फिरना है, ये क्वार्टर में ही रहेगी गरीब। जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते इसको यही रहने दो, यहाँ से वापसी पर इसके बारे में कोई मुनासिब हल सोचेंगे। वो बोला चौधरी की तलाश से मुताल्लिक कोई लाहे अमल सोचा है? मैंने कहा जंगल खेल का माहौल देखते हुए ये काम काफी दुश्वार गुजार दिखाई दे रहा है। वो बोला मेरा ख्याल है खाना खाकर निकलते हैं, हरकत में बरकत है, शायद उसका कोई सुराग मिल जाए। अमजद का मशवरा काफी माकूल था। मैंने कहा खाना खाकर थोड़ा आराम करते हैं, रात को निकलेंगे। यूं भी मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ दिन से ज्यादा रात को रश होना चाहिए। वो मुझसे मुत्तफिक हो गया, ठीक है इसी तरह कर लेते हैं। मुझे अचानक डाबेर वालों की आमद याद आई और हाँ एक अहम बात, और मैं अमजद को उनकी आमद और अपनी एहतियाती तदबीर के मुतालिक बताने लगा। वो बोला क्या चक्कर है आजकल, तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज नहीं हो गया? मैंने मुस्कुराने पर इक्तिफा किया। उसके बाद खाना आने तक हम चौधरी की तलाश के लिए कोई मुतफिका लाया अमल सोचते रहे। सादिया ने खाना बहुत अच्छा बनाया था, बिल्कुल घर की याद ताजा हो गई थी। खाने के बाद वो चाय लेकर आ गई। चाय पीकर मैंने कहा हम दोनों इसी कमरे में रहेंगे, तुम अपने लिए साथ वाला कमरा सेट कर लेना, बाकी फिलहाल हम सो रहे हैं। उठकर थोड़ी देर बाद घूमने के लिए निकलेंगे। तुमने अपने कमरे की कुंडी बंद रखनी है, अलबत्ता बैरूनी दरवाजा हम बाहर से बंद करते जाएंगे। अगर हमें देर हो जाती है तो घबराना मत। वो बोली रात के लिए खाना पका लूं? मैं चूंकि सब्जी गोश्त और दालें वगैरह इकट्ठी ले आया था इसलिए उसने मेरा मशवरा जरूरी समझा। मैंने गुरूब होते सूरज की तरफ इशारा करते हुए कहा रात के लिए? अल्लाह की बंदी अब कौन सा दिन है? वो मुस्कुरा दी। तो फिर आप लोगों को किस टाइम जगा दूं? मैंने कहा हमें जगाने की जरूरत नहीं है, अपने कमरे तक महदूद रहो, जब तक कोई काम ना हो हमारे पास आने की बिल्कुल जहमत मत करना। आखिरी अल्फाज कहते हुए मेरा लहजा हल्का सा खुश्क हो गया था। वो धीमे लहजे में बोली जी अच्छा, और कमरे से निकल गई।
अमजद बोला, क्यों इतने कड़वे लहजे में बात कर रहे थे? मैंने कहा, जवान लड़की है माजे साहब, और उसके साथ बेआसरा भी। हमारा नर्म लहजा उसके दिल में गलत फहमी का बीज भी बो सकता है, जो बाद में हमारे लिए लाजनहल मसला साबित होगा। इसलिए बेहतर यही है कि अभी से उसे गैर होने का एहसास दिलाया जाए, ताकि बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम न बने। वो बोला, ठीक है बुकरात साहब, अब सो जाओ। वो लकड़ी की बनी हुई चारपाई पर ढेर हो गया। चारपाइयों की बनावट हूबहू हमारे इलाके की चारपाइयों जैसी थी। लकड़ी का फ्रेम जिसकी बुनाई खजूर के पत्तों से बने हुए बांध से की गई थी। सोने से पहले मुझे वॉशरूम जाने की हाजत हुई और मैं कमरे से बाहर निकल आया। सादिया के कमरे का दरवाजा खुला था। किचन में बर्तनों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब यही था कि वो बर्तन धोने में मसरूफ है। वॉशरूम से बाहर आने पर भी मुझे किचन में वो मशगूल दिखाई दी। मैं आराम का इरादा किए कमरे की जानिब बढ़ा, मगर आराम शायद हमारी किस्मत में नहीं था, और इसका सबब दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक थी। मैं उन्हीं कदमों पर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। सादिया भी दस्तक की आवाज सुनकर किचन से निकल आई थी। मैंने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और दबे कदमों आगे बढ़कर दरवाजे की झर्री से आंख लगा दी। मेरे बदतरीन अंदेशों ने हकीकत का रूप धार लिया था। दरवाजे पर जानान खान के आदमी खड़े नजर आए। मैं जल्दी से मुड़कर कमरे की जानिब बढ़ा। मेरी तेजी देखते हुए सादिया भी परेशान हो गई थी। मैंने अपनी क्लैशनकोफ संभाल ली। माजे तैयार हो जाओ, खतरा है। अमजद पर गनूदगी तारी होने लगी थी, मगर वो कमांडो था जो अमन के दिनों में भी एक आंख खोल कर सोते हैं। उस वक्त तो यूं भी हम खतरनाक हालात से दो चार थे। मैं जब तक दरवाजे से निकलता वो मेरे पीछे पहुंच गया था। उस वक्त एक मर्तबा फिर दरवाजा जोर से धड़धड़ाया। मैंने कहा, एक मिनट भाई, कपड़े तो पहनने दो। मैंने उन्हें ये तासुर देने की कोशिश की कि गोया मैं बाथरूम में हूँ। मैंने कहा, माजे, मेरा ख्याल है दाएं जानिब के क्वार्टर की दीवार फलांग कर निकलने की कोशिश करते हैं। पिछली साइड पर तो उन्होंने लाजमन बंदे बिठाए होंगे। उसने इस बात में सर हिलाकर अपनी रजामंदी का इंदिया दे दिया। वो तमाम क्वार्टर एक सीधी लाइन में थे। क्वार्टरों के सामने और पुश्त पर तो हर सूरत खतरा मौजूद था। अलबत्ता दूसरे क्वार्टरों का सहारा लेकर हम वहां से निकलने की कोशिश कर सकते थे। अमजद क्वार्टर की दरमियानी दीवार पर चढ़ा और आहिस्तगी से दूसरी जानिब उतर गया। मैंने सहारा देकर सादिया को भी दीवार पर चढ़ाया और उसके पीछे खुद भी ऊपर चढ़ गया। अमजद अगले क्वार्टर की दीवार के करीब पहुंच गया था। क्वार्टर के अंदर छाई खामोशी उसके खाली होने का ऐलान कर रही थी। सादिया बगैर किसी सहारे के दूसरी जानिब उतर गई। अगले क्वार्टर में कमरे के अंदर बातों की आवाज सुनाई दी, मगर हम दबे कदमों तीसरे क्वार्टर की दीवार पार कर गए। उस क्वार्टर में भी बंदे मौजूद होने के बावजूद हमारा सामना किसी से न हुआ। अलबत्ता चौथे क्वार्टर के सहन में कुर्सियां डाले एक मर्द और दो जवान साल औरतें बैठी हुई थी। हमें देखते ही वो घबरा कर खड़े हो गए थे। मर्द ने हिम्मत मुजतमा करते हुए पूछा, क्या बात है? मैंने उन्हें तसल्ली दी, घबराएं नहीं, हम दुश्मनों से बचने के लिए भाग रहे हैं। वो क्वार्टर उस लाइन का आखिरी क्वार्टर था। उसके बाद निस्बतन बड़े मकानों का सिलसिला शुरू हो रहा था, लेकिन उस क्वार्टर और पहले मकान के दरमियान एक पतली सी गली गुजर रही थी। अमजद ने दीवार से उचक कर गली में झांका और बोला, खाली पड़ी है। मैंने कहा, निकलो फिर, और हम तीनों दीवार से गुजर कर गली में आ गए। मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर बड़ी गली में झांका तो अपने क्वार्टर के सामने मुझे चंद बंदे खड़े नजर आए। वो सामने हमारे क्वार्टर की तरफ मुतवज्जे थे। मेरे देखते ही देखते उनमें से एक बंदा क्वार्टर की सामने वाली दीवार से उचक कर क्वार्टर के अंदर दाखिल हो गया। उनके सब्र का पैमाना शायद लबरेज हो चुका था। चंद सेकंड के बाद ही दीवार से कूदने वाले ने क्वार्टर का दरवाजा अंदर से खोल दिया और वो तमाम तेजी से अंदर दाखिल हो गए। मैं उनसे बोला, आ जाओ, और हमने दौड़कर वो चौड़ी गली क्रॉस कर ली। वो पतली गली काफी तवील थी। हम तेज कदमों से चलते हुए वहां से निकलते चले गए। सादिया को हमारा साथ देने के लिए तकरीबन दौड़ना पड़ रहा था। वो गरीब अभी तक नंगे पांव थी। अमजद बोला, जानू साहब, इसका मतलब है तेरी एहतियात पसंदी काम नहीं आ सकी। मैंने कहा, हाँ यार, इसीलिए तो इसे जंगल खेल कहते हैं। बहरहाल अब बुकिंग वाले का सफाया करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें शक्ल से पहचानता है। वो बोला, वो तो खैर हो ही जाएगा, पहले सर छुपाने की कोई जगह ढूंढो। मैंने कहा, मेरा ख्याल है किसी खाली क्वार्टर या मकान में घुसकर रात गुजारते हैं। वो बोला, बिल्कुल ठीक है। उसने मेरी तायद की और हम चलते चलते घरों के बैरूनी दरवाजों को गौर से देखने लगे। सूरज गुरूब हो चुका था, मगर अब तक इतनी रोशनी बाकी थी कि हम गली के वस्त से तालों को देख सकते। हमारी मेहनत रंग लाई और जल्द ही एक बड़े मकान के बाहर हमें ताला लटकता नजर आ गया। अमजद मुस्तफसिर हुआ, ये कैसा रहेगा जानू? मैंने कहा, अच्छा है, अंदर घुसकर दरवाजा खोलो। मकान की दीवारें काफी ऊंची थीं। दाएं बाएं का जायजा लेकर अमजद उछला और दीवार के ऊपर अपनी उंगलियां फंसाकर ऊपर चढ़ गया। दीवार पे उसने ज्यादा देर नहीं गुजारी थी। एक सरसरी नजर सहन में दौड़ाकर वो नीचे कूद गया। मिनट डेढ़ मिनट के बाद उसने छोटी खिड़की खोल दी
और मैं और सादिया जल्दी से अंदर घुस गए। मैंने कहा एक दफा तसल्ली कर लें, ये न हो कोई आर्जी तौर पर बाहर गया हुआ हो और लेने के देने पड़ जाएं। और हम दोनों ने कमरों के ताले तोड़कर देखने शुरू कर दिए। पहले 2 कमरों में गर्द की हल्की हल्की तह देखने के बाद हमें यकीन हो गया था कि चंद दिनों से इन कमरों को किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया। बाकी कमरों के ताले तोड़ने की जरूरत महसूस न करते हुए हमने उन्हें बंद रहने दिया था। मैंने कहा आप दोनों आराम करो, मैं जरा बुकिंग वाले की खबर ले लूं। अमजद ने मशवरा दिया दोनों चलते हैं। मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं, एक बंदे का सादिया के साथ रहना जरूरी है। वो बोला फिर आप भी आराम करें, उससे बाद में निमट लेंगे। मैंने कहा दिमाग ठीक है माजे साहब, उस मूजी ने हमारी मुबारक शक्लें बहुत अच्छी तरह से देखी हुई हैं। उसका जिंदा रहना हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। इस दफा उसने खामोश रहते हुए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी। मैंने एक पुरानी चादर उठाकर पगड़ी के अंदाज में सर पर लपेटी और उसका एक पल्लू मुंह के गिर्द लपेटकर अपने चेहरे को किसी हद तक ढांप दिया। मैंने सादिया से पूछा तुम्हें हथियार चलाना आता है? उसने अस्बात में सर हिलाया, जी। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दिया। ये पिस्तौल अपने पास रखो, शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ जाए। हम दोनों के पास यूं भी क्लैशनकोफे मौजूद थी। 3 क्लैशनकोफे हमने डाबेर वालों से अपने कब्जे में की थी, जिसमें से एक मेरे पास मौजूद थी, जबकि 2 गन्ने हम गाड़ी में भूल आए थे। उन दोनों को वहीं छोड़कर मैं बाहर निकल आया। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहरा हो रहा था। मैं होटल की समत चल पड़ा। लोगों की आमदोरफ्त में कोई खास कमी नहीं हुई थी और ये चहल पहल इस बात का इशारा था कि जंगल खेल की रातें भी जागती थी। जल्द ही मैं होटल के करीब पहुंच गया, लेकिन अंदर दाखिल होने की बजाय मैं नाक की सीध में निकलता चला गया। अलबत्ता होटल के गेट के सामने से गुजरते हुए मैंने एक नजर अंदर देखकर बुकिंग वाले की मौजूदगी का यकीन कर लिया था। काफी आगे जाकर मैं पीछे मुड़ा और टहलने के अंदाज में वापस आने लगा। दरवाजे के सामने मजीद 1.5 घंटे तक मेरी मटर गश्त जारी रही। जिस वक्त बुकिंग वाले ने अपनी जगह छोड़ी उस वक्त रात का अंधेरा खूब गहरा हो चुका था, मगर होटल के अंदर रोशनी का खातिर खा बंदोबस्त किया गया था, जो लाजमी तौर पर जनरेटर के मरहूने मिन्नत था, क्योंकि उधर सरकारी बिजली का कोई बंदोबस्त नहीं था, और होता भी कैसे जब ये इलाका किसी भी हुकूमत के जेरे असर नहीं था। उसके बाहर आते ही मैंने गैर महसूस अंदाज में उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। गलियों के अंदर इक्का दुक्का आदमियों की मौजूदगी जहां मेरे काम में माने साबित हुई, वहीं उसे भी मेरे ताक़ुब की सरगर्मी से बेखबर रखा। 2-3 गलियां मुड़ने के बाद आखिर वो एक छोटे से मकान के सामने रुककर उसका ताला खोलने लगा, और ये देखकर मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया, गोया वो उस मकान में अकेला था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गली सुनसान नजर आई। अलबत्ता हमसे आगे 2 बंदे जाते हुए दिखाई दे रहे थे। जब तक वो क्वार्टर खोलकर अंदर दाखिल होता मैं उसके सर पर पहुंच चुका था। उसने घर में दाखिल होकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, और उसकी ये कोशिश नाकाम बनाते हुए मैं दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हो गया। अब क्या बात है, कौन हो तुम? मैंने कहा खाकसार को अब्दुल्लाह वल्द अब्दुर्रहमान कहते हैं। वो हकलाया, अब्दुल्ला भाई आप? मैंने कहा जी मैं। तुमने कहा था ना कि अगर तुम्हारे लायक कोई खिदमत हो तो मैं बेझिझक बता सकता हूँ। वो थूक निकलते हुए बोला, क्यों नहीं, मगर उसके लिए आपको होटल में तशरीफ लाना चाहिए था। मैं सर्द लहजे में बोला, नहीं, इस खिदमत के लिए यही जगह मुनासिब रहेगी, तुम आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोलो। वो बोला, आप मुझे किसी गलत फहमी का शिकार लग रहे हैं। वो अपने दिल के अंदेशे जबान पर ले आया। मैंने कहा शायद, मगर आप कोशिश करके मेरी गलत फहमी दूर कर सकते हैं। वो बोला, बिल्कुल सर, क्यों नहीं। मैं उसे क्लैशनकोफ से आगे धकेलता हुआ बोला, तो चलो फिर दरवाजा खोलो ताकि गलत फहमी दूर हो जाए। और वो मरे मरे कदमों से अंदर की तरफ चल पड़ा। बैरूनी दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर मैंने जेब से पेंसिल टॉर्च निकाली और जलाकर उसके पीछे चल पड़ा। उसकी हरकत सकनात पे मैंने गहरी नजर रखी हुई थी। उसकी तरफ से जरा सी बेकायदगी पर मैं उसे आड़े हाथों लेने के लिए तैयार था, और इसी मकसद के लिए मैंने टॉर्च जलाई थी ताकि वो अंधेरे का फायदा उठाकर कोई गलत हरकत न कर गुजरे। मगर अभी तक वो मेरे खतरनाक अजाइम से बेखबर था, इसलिए उसने किसी भी किस्म की उल्टी सीधी हरकत से गुरेज किया था, या शायद वो मेरे हाथ में मौजूद गन से डरा हुआ था। उसने अंदरूनी कमरे का दरवाजा खोला और हम इकट्ठे कमरे में दाखिल हो गए। चारपाई के साथ पड़ी लकड़ी की तपाई पर एक छोटा सा गैस सिलेंडर रखा हुआ था। उसने तीली जलाकर मेंटल को आग लगाई और कमरे में तेज रोशनी फैल गई। वो गैस सिलेंडर जलाकर बोला, बैठे अब्दुल्ला साहब। मैंने कहा, बैठने को छोड़ो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरे मुताल्लिक जानान खान के आदमियों को मालूमात पहुंचाने के इवज कितनी रकम वसूल की है। वो हकलाया, कौन जानान खान और कैसी रकम?
आपने कैसी बातें शुरू कर दी हैं? मैंने कहा, जानान खान फ्रॉम डाबेर मिस्टर वादा खिलाफ। अगर तुम्हें ज्यादा रकम चाहिए थी तो मुझे बताते, मैं कोई गरीब तो नहीं था, तुझे मुंह मांगी रकम अदा कर सकता था। बहरहाल अब तेरी सजा यही है कि मेरी दी हुई तमाम रकम बशमूल एडवांस किराए के और जानान खान से हासिल की हुई रकम मेरे हवाले कर दो। मेरी बात खत्म होते ही उसके चेहरे पर चमक सी लहराई और ये चमक इतनी आसानी से जान छूटने की थी। उसने बगैर कोई बहस किए जल्दी से जेब में हाथ डाला और 100 के नोटों की एक छोटी सी गड्डी मेरी जान ने बढ़ा दी। बोला, ये 3100 रुपए हैं। मैंने कहा, इसका मतलब है उन्होंने तुझे 2000 की हड्डी डाली थी। मेरा लहजा जहरखन था। उसने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने कहा, तुम्हारा नाम? वो बोला, शाकिर खान। मैंने कहा, शाकिर खान, तूने उन्हें मेरा और मेरे साथी का हुलिया बताया था? उसने नफी में सर हिलाया। नहीं। मैंने कहा, सच बताओ। वो जल्दी से बोला, सही कह रहा हूँ। उन्होंने मुझसे उस वक्त से 2-3 घंटों के दौरान आने वाले बंदों के मुताल्लिक मालूमात पूछी और मैंने फकत ये बताया था कि 2 मर्द क्लैशनकोफों से मुसल्ला थे और उनके साथ एक औरत भी थी। मैंने कहा, चलो मान लेता हूँ। बहरहाल मुझे अफसोस है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब अगर वो जल्दी में मेरे हुलिये के मुताल्लिक नहीं पूछ सके हैं तो दोबारा आकर शायद उन्हें ये इस्तफसार न भूले। मेरे लहजे में पाई जाने वाली संजीदगी ने उसे लर्जा दिया था। वो बोला, मैं अब उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैंने कहा, अगर तू आराम से नहीं बताना चाहेगा तो पूछने के और भी कई तरीके उनके पास मौजूद होंगे। वो कुछ कहने लगा। मैं अल्फाज उसके मुंह में अधूरे रह गए थे। मैंने बिजली किसी तेजी से उसकी गर्दन को बाएं बाजू की गिरफ्त में ले लिया और मखसूस झटके के साथ उसे दुनिया के गमों से निजात दिला दी। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।